सर त्यांनी म्हणजे सध्या कोविड-19चा जे प्रभाव शिक्षणावर पडलेला आहे आपल्या, आणि सध्या स्थिती काय आहे व काय काय पुढे अडचण येणार आहे, एक शिक्षक म्हणून किंवा प्राध्यापक म्हणून आपल्याला शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांनी एक थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न केला. तर कोणाचा प्रश्न असेल तर नक्कीच विचारा. नाही प्रश्न. ओके प्लीज. हाँ Hello, yes sir, Mohsin sir. Yeah, Assalamualaikum sir. Sir, this is Dr. Mohsin Sheikh from Azmat Fatima English School, Srirampur District, Ahmednagar. Okay sir. Sir, my question will be like this. Like actually, I have a English medium school. It is from like nursery till standard 10. Since like 16th of March 2020, when the government asked to close with the school. Since from that time we are teaching the students through the online teaching is going on. Different sources we are using. One of the sources Zoom app. So this was running fine. But then after a period of some time, some complaints from the parent arose regarding the students are getting more addict with the mobile. And once they are not given the mobile, they are feeling more like irritated. Yes. So, sir, what will you suggest? How can a way come out of that? We can use the technology also, because, sir, if because they are getting addicted, and if we are avoiding the technology, so sir, they will remain away from these things, sir. Means they can't go ahead in their academics. So we want to opt the this technology also. Okay. Samir sir, please answer the question for their academics. Right. Okay, Sir, I think. So how can we have a solution for this, sir? Right. I think that instead of giving everything on Zoom, you can send PDF and worksheets to them, and ask the parents to get a printout and do that, because you have to reduce it, right? You have to balance between both the things. So what we should do is prepare a worksheet, make a PDF format, and send it to the parents. They will take a printout and ask the students to work offline as well, right? Okay, sir. Any other question? Okay. That's an immediate thing that came to my mind. Okay. Sir, I have one question. Yeah, Alim Pasha sir. Dr. Alim Pasha sir, please. Sir, presently, due to pandemic, the whole education system is affected. What is your opinion regarding the degree or PG examination? That will be conducted. UGC is going to UGC has given plans, and accordingly, universities have come up with their plans. Different universities have prepared different plans. For instance, HCU has suggested that there won't be any exam for first and second year students. There will be only exams for final year students. But our university has decided to postpone it and to conduct it in the month of July, right? So exams will be conducted in July. That is one option. And then the other option is reducing the number of marks, and instead of conducting 100 marks exam, converting into the mode should be online or offline, sir, as a traditional or online? The most preferable is offline, but some component of online can be included. Okay, thank you very much. Any other question? कोणाचा जर प्रश्न असेल तर विचारा. सर, डॉक्टर मोहसिन साहब ने अभी जो यह पॉइंट रेज किया था, उसमें मैं कुछ इनपुट्स देना चाहता हूँ. जी जरूर सर. डॉक्टर मोहसिन साहब जो श्रीरामपुर से जुड़े थे, अभी उनका जो सवाल था कि बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं, तो उनके लिए मेरे इनपुट्स कुछ ऐसे थे कि जैसे गूगल क्लासरूम वगैरह है, गूगल मीट जो प्लेटफॉर्म है, और जूम में हम लोग बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम है जी, एक अलग है, एक गूगल ड्राइव है. इसके ऊपर गूगल ड्राइव के ऊपर तो हम लोग नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, तो हर टाइम ऑनलाइन मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप लिंक शेयर कर सकते
बच्चे नोट्स उसमें से निकाल सकते हैं, कुछ सिलेबस वगैरह जी। आप देना चाह रहे हैं तो उससे निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम लोग ऑनलाइन आकर ही टीचर आपके स्टूडेंट्स को टीच करे या उसको सिखाए, जरूरी नहीं है। आप गूगल ड्राइव का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और गूगल क्लासरूम जो है, इसके आप नोट्स वगैरह है, वीडियो है, पीपीटीज है, एक्सेल जी। शीट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, इमेज पीडीएफ वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग चीजें हैं, और मैं समझता हूँ ये जो अभी जो टाइम मिला है, ये अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों को ये सब प्लेटफॉर्म्स यूज करने की आदत बनाना पड़ेगी, और हमको जी। हमारा एक्सपर्टाइज इसमें करना पड़ेगा, हमको एक्सपर्ट होना पड़ेगा सही। इसमें, जी। ताकि ये जो आगे का जो आने वाला जो टाइम है, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड पूरी दुनिया जा रही है। जी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, वर्चुअल जी। वर्ल्ड है, ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा आगे चल के स्कोप है इसके अंदर। और हम एज ए टीचर, एज ए एजुकेशनिस्ट, जब तक हम इसके ऊपर हमारा कमांड नहीं होगा, तो हम जी। बाकी मतलब हमारे जो डिस्टेंस जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, हम उनसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये हम तमाम मकबूल सर बोल रहा हूँ मैं, आपके जी क्लासमेट मकबूल सर। बीएड के। जी जी जरूर। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, बहुत ही अच्छी मालूमात आपने यहाँ पर दी, और मुजीब सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत सारी मालूमात आप लोगों ने शेयर की। इसी तरह से सर एक और बात कहना चाहूँगा कि स्कूल के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ ले सकते हैं क्या, जैसे कि विदाउट इंटरनेट बच्चों को मवाद किस तरह फराहम किया जा सकता है, ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, या अगले सेशन में जानना चाहूँगा। जी इंशाल्लाह। इसके लिए आपको या आप किस तरह से पीडीएफ वगैरह कुछ शेयर कर सकते हैं, ये बोलिए या जी। फिर सेंड कीजिए, क्योंकि स्लम एरिया में ज़्यादा बच्चों के पास इंटरनेट मोबाइल या एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, इंटरनेट भी जी। अवेलेबल नहीं होता है। जी। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहूँगा। जी। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ हेलो सर, मैं श्रुति जोंधर बात कर रही हूँ सर, नांदेड़ से, अच्छा। एमएस क्रिएटिव स्कूल से। हाँ हाँ yes। सर, मेरा एक सवाल है। अभी जो सर ने बोला कि स्लम एरिया है, हमारा देगलूर नाका जी स्लम एरिया है, वहाँ पे बच्चे कुछ पढ़ाई ठीक से करते नहीं, और करते तो उनके पेरेंट्स को ज्यादा वो पढ़े लिखे जी वाले जी। नहीं है, वो सब टीचर पे डिपेंड राइट। रहते हैं। तो टीचर पे डिपेंड रहने की वजह से टीचर को पूरा अभी मोबाइल पे, इंटरनेट पे उनको नहीं जमता है, तो वो बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी मैम। उनको एजुकेशन कैसा दिए। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ सर, उन बच्चों के जी लिए हमको एजुकेशन टीचिंग देना है, तो उनको कैसा सिखा सकते हैं हम। यस मैम, उसका वो जिन लोगों के पास मतलब जो इंटरनेट के बिना का जो है वो एक नहीं, उनके पास है भी तो उनको समझ जी में नहीं आएगा, तो उनको अभी राइट। लॉकडाउन की वजह से तो हम उनके घर पे तो नहीं जा जी जी। सकते, उनको पढ़ा तो नहीं सकते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका राइट। कुछ सॉल्यूशन अपने पास की, तो जो सिंपल तरीके से मेथड पे हम उनको सिखा जी सकते हैं। मैम, उसका कोई रेडीमेड अभी एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं है हमारे पास भी, ओके। लेकिन ग्रेजुअली वी विल हैव टू कम अप विद दैट, क्योंकि उसमें आपको जो है जब जैसे जैसे अब कभी हम पेरेंट्स मीटिंग वगैरह जो करते हैं अब, क्योंकि अब इस साल हाँ। का तो हो गया, लेकिन अब अगले साल के लिए जब हम प्लान करेंगे, तो जब आप टीचर्स पेरेंट मीटिंग करते हैं एक बार महीने में, तो उस वक्त ही आपको ये सारे मटेरियल्स वगैरह शेयर करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा हमको पहले से, जैसे अभी रिजवान सर ने भी बताया जस्ट अभी कि सुना है थोड़ा मैंने। अभी ये टाइम जो है, ये छुट्टी का टाइम नहीं है, ये प्रिपेयर होने का टाइम है, हाँ। ऐसा हो गया। क्योंकि जैसे अब सेशंस जो हैं, जैसे अब सितंबर में यूनिवर्सिटी में सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो टाइम है, ये टाइम यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए सारा मटेरियल प्रिपरेशन का टाइम है। जी तो सर। वैसे ही जो है स्कूल में भी टीचर्स को जो है उनको अपने वर्कशीट्स वगैरह सारे प्रिपेयर करके रखने होंगे, और थोड़ा सा हाँ आप यस सर। मैं जैसे कह रहा था कि आपके फाइनेंसेस जो हैं, पहले जिन चीजों पर खर्च होते थे, अब उसको थोड़ा सा इधर डाइवर्ट करने की भी जरूरत है। जैसे आपको बहुत सारी चीजें जेरोक्स करना होगा, बहुत सारी चीजों के बंचेस बना के पूरा उनको देना होगा, क्योंकि
और बाद हाँ में तो ये भी रहेगा, अगला इशू ये भी है कि ये आप वर्कशीट्स देने से मसला हल नहीं होगा, पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, वहाँ क्या करेंगे? हाँ सर, वर्कशीट दिया है, हाँ, कुछ पेरेंट्स ने हमको अभी जी सेंड भी किया है, तो हम उनको करेक्शन करके सेंड कर रहे हैं सभी टीचर्स। जी हाँ, लेकिन बाज जगह ऐसा है कि वहाँ पेरेंट्स भी अनएजुकेटेड हैं, बच्चा हाँ प्राइमरी का यस है, तो वहाँ यस, क्या प्री करेंगे? प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल है हमारी 3rd स्टैंडर्ड तक। यस यस यस, तो यही सारे चैलेंजेस हैं मैम। इसको कैसा है कि वंस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, विल फाइंड सॉल्यूशंस। हेलो सर। यस मैडम ने थैंक यू मैंने सर। अभी जो हाँ बात हेलो रखी यहाँ पर कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम जी ये जो भी आज का जो प्लेटफॉर्म है, हम सब अलग अलग कॉलेजेस के स्कूल्स के लोग जब टाइम टू टाइम ऐसे साथ में आएंगे, तो सर एक दूसरे की आइडियाज से हम लोगों को सीखने का मौका जी मिलेगा। और जरूर मैं समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म हमको सबको अपने आप को अपग्रेड करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैडम ने फिर जी सवाल उठाया कि हम ठीक है, हम कुछ चीज अगर दे रहे हैं, मगर वो फीडबैक में कुछ पेरेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स हमको नहीं दे पाते, मतलब वो चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करें मगर नहीं कर पाते। तो ये इससे ओवरकम जी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको मतलब जैसे टाइम टू टाइम हम लोग अगर मैं सर से एक मिलते गुजारिश रहें करूंगा कि एक ग्रुप बना ले जी उसका, और दो जी लोग सुजीत सर और समी सर अगर उसके एडमिन हो जाए, और अगर जी कोई पर्सनल पे भेजे, तो एक सीखने सिखाने जी का एक नेक्सस अपना अच्छा तैयार हो सकता हाँ, है। नेक्सस हो सकता है हर बिल्कुल। हर इंसान के पास एक अच्छा कुछ ना कुछ आइडियाज है, हो सकता है मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको कुछ मालूम है, तो मैं आपकी मालूमात से फायदा उठा सकता हूँ। आफ्टर हाँ ऑल हम तमाम का नॉलेज, आपका नॉलेज, हमारे स्टूडेंट को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी कंट्री के स्टूडेंट्स को जी बेनिफिट होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यस सर, यू आर राइट। राइट हेलो सर। हाँ हेलो हेलो। मैम हाँ जी हेलो सर, सामी सर, हेलो, गुड आफ्टरनून। यस गुड आफ्टरनून जैसे अभी आपकी और श्रुति मैम और रिजवान सर, आप सभी की बात हो रही थी, जी मुझे कुछ इनपुट्स देने हैं। जैसे कि आपने बोला जी कि जरूर ऑनलाइन हम वर्कशीट्स भेज सकते हैं, जी इस तरह से ऑनलाइन हम काम कर सकते हैं। तो मुझे ये बताना था कि मैं शिक्रापुर नियर पुणे, आई एम इंचार्ज जी प्रिंसिपल ऑफ तक्षशिला गुरुकुल पब्लिक स्कूल। तो हाँ यस हमने जब अप्रैल में हमारा सीबीएसई का शुरू होता है, तभी से जी ये वर्कशीट्स वगैरह शुरू कर दिए। और जैसे कि श्रुति मैम का कहना था कि बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है, या पहुंचे फिर भी उनका जो फीडबैक है वो हमें नहीं मिल रहा है। राइट तो ऐसे हम कर सकते हैं कि सपोज मैंने कोई वर्कशीट दिया है, तो उसका जो आंसर होगा या फिर जो कंसेप्ट बच्चों तक पहुंचना जरूरी है, जैसे मैंने कोई वर्कशीट दिया है उसमें क्वेश्चन है, तो उसके आंसर मैं नेक्स्ट डे वहां पर भेज सकती हूँ। हमारे स्कूल में अभी हम वैसे ही कर रहे हैं, ग्रुप से सारे व्हाट्सएप के। और दूसरी, अभी वर्कशीट्स तो देख देख के पढ़ पढ़ के बोर होते हैं, जैसे आपने बताया पीडीएफ करके हमें भेजना चाहिए। तो वैसे तो हम कर ही रहे हैं सर, लेकिन क्या वेबिनार होता है से भी बच्चे बोर वो होते मैम थोड़े दिन में जी तो थोड़ा सा हमने ये कुछ किया एक्टिविटी कि चाहिए वीडियोस सर। बनाए हमने। सही है हाँ, तो हमने वीडियोस बनाए सर। जी जैसे कि सीखा तो हम ही रहे हैं, सिर्फ एज्यूम करना है कि बच्चे सामने बैठे हैं। बस हाँ थोड़े थोड़े 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के टॉपिक लेके थोड़ा सा सिंपल उनको बना के एक्टिवली हम जितना कर सकते हैं जी करके वो हम शेयर कर देते हैं। फिर अगर राइट कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर या फिर पर्सनली कांटेक्ट होता है पेरेंट्स से। जी जी हमारा भी एरिया स्लम एरिया नहीं है, लेकिन जी रूरल एरिया ज्यादा है, रूरल तो है अनएजुकेटेड। प्रॉब्लम यही है कि ये जो कोविड-19 है या प्रॉब्लम वही लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन जो है, ये प्राइमरी एजुकेशन को, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन को, और अगर ज्यादा यस बात करें यस तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन को, इसको ज्यादा अफेक्ट करेगा। बाकी जो हमारा हायर एजुकेशन है, करेक्ट बच्चे करेक्ट। इंटरनेट जानते हैं, मोबाइल का यूज जानते हैं, और उनको जो ई लर्निंग सोर्स है उनको एड्रेस पता है, वो जाकर वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन जो अफेक्ट करेगा, मेन अफेक्ट जो होगा इस प्रॉब्लम का, वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे होगा। वहां पर हमको जी सॉल्यूशन जो है तो तलाश करने होंगे, और जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नए नए कि हमको आ इस रहे हैं। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। इस विजन को राइट लेकर अगर हम सब टीचर काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, और हम अगर एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे तो सभी का फायदा होगा। राइट जी, चलिए थैंक यू सर, क्लोज करते हैं ओके, थैंक यू वंस अगेन सभी पार्टिसिपेशन का। थैंक यू और सर। आपसे थैंक यू गुजारिश है कि सर। फीडबैक फॉर्म भरे। 3:20 से हम जो है तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे। आप 3:20 को जाकर जो है तो फॉर्म हेलो भरें। सर। सभी का बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। सर
मैं मुजीब हमारे सर कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। जी जी मैम प्लीज सिर्फ 2 मिनट बचे, बोलिए। सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने आपको नहीं मुझे नहीं, सर। नो नो बोलिए नहीं मैम। मैं सिर्फ जी, इतना अपर्णा बताना हाँ यस सर। नहीं मुझे जो पहले आपका सेशन था ना वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो वो ओके, फिर से सुनने को मिल सकता है क्या? मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा मैडम इसको, और आपको लिंक शेयर करूंगा मैं सभी मेंबर्स को। ओके हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों की जवाबदारी भी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम तमाम को सीखते रहना है कि ये नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है हम कैसे उसमें एक्सपर्ट बने, और हमारा जो सीखने सिखाने का मतलब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है हम ज्यादा लोगों तक किस तरीके से हम ले जा सकते हैं, ये हमको कोशिश करनी चाहिए। एक मर्तबा जो है तो हमारे चेयरमैन रिजवान अब्दुल मुतल्लिब सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको इस तरह का प्रोग्राम करने की परमिशन दी, और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समी सिद्दीकी जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।